firm means when all the economic relation of partnership among different partners are changed, that is called the dissolution of partnership firm. And dissolution of firm means when all the economic relation among all the partners come to an end, that is called the dissolution of firm. The firm wind up means close, and all the accounts has closed. According the Indian Partnership Act 1932, the dissolution of a partnership firm in the following ways, which I have explained earlier. So let's start the other topics today. First is settlement of accounts. Settlement of account means when the dissolution of partnership firm has used, that time the firm settle all the accounts to the partners. So first is section 48 of the Indian Partnership Act 1932 provide the following rules for the settlement of accounts between the partners. The firm will be followed all the rules at the time of dissolution of partnership firm. First is payment of losses. Section 48A, losses shall be paid first out of profit, next out of capital, and last if necessary, but the partners individually in their profit sharing ratio. It means जब फर्म में पार्टनरशिप, जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जब डिसोल्यूशन हो रहा होगा, तो उस टाइम पर जो भी फर्म के लॉसेस हैं उन सभी लॉसेस को फर्म पूरा करेगी जो सबसे पहले प्रॉफिट है उनसे। उसके बाद अगर उस प्रॉफिट से लॉसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, आफ्टर दैट द फर्म विल बी यूज द कैपिटल। अब यहाँ पर अगर कैपिटल से भी पूरा नहीं हो रहा है तो जो भी पार्टनर्स फर्म में थे उन सभी से पर्सनली इंडिविजुअली फर्म जो है अपने लॉसेस को पूरा करेगी। तो इस तरह से जब वहाँ पर फर्म को लॉसेस होंगे तो उन लॉसेस को पूरा करने के लिए, मतलब बैलेंस शीट को प्रॉपर करने के लिए, लॉसेस को कंप्लीट करने के लिए फर्म को पैसा चाहिएगा। उस पैसे को फर्म प्रॉफिट से पूरा कर सकती है कि सबसे पहले जो प्रॉफिट हमें मिला था उस प्रॉफिट को हमसे वापस ले सकती है। इसके बाद कह रहे हैं कि फर्म में जो पार्टनर्स की कैपिटल है उससे हम उन लॉसेस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों से भी, उन दोनों तरीकों से भी हमारा जो लॉसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो जो फर्म है वो पार्टनर्स के जो इंडिविजुअली जो उसके पर्सनली अकाउंट्स है या पर्सनली उससे वो पैसा पूरा कर सकती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। सेक्शन 48B, assets of the firm are first to be applied in paying the debts of the firm to the third party. Next, in paying to each partner ratable what is due to him from the firm for advances and distinguished from capital. In paying to each partner ratably what is due to him on account of capital, and the residue to be divided among the partners in the proportion in which they were entitled to share profit. So, when the firm has dissolution of partnership firm, that time the firm has settlement of account by the payment of losses through the profit capital individually in their profit sharing ratio by the partners. After that, the firm can be used distribution of assets if the profit capital has not able or has not complete. So distribution of assets means assets of the firm are first to be applied in paying the debts of the firm. यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले फर्म अगर अपने लॉसेस को पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकती है फर्म के प्रॉफिट को, उनके कैपिटल को और पार्टनर से इंडिविजुअली पर्सनली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। लेकिन अगर उन सभी चीज़ों से फर्म का जो लॉस है वो कंप्लीट नहीं होता है तो फर्म उसके बाद जो एसेट्स हैं फर्म की उनको यूज़ कर सकती है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड इन पेइंग द डेब्ट्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लायबिलिटी और द डेब्ट्स। अ लायबिलिटी इज व्हेन यू बोरोड द मनी टू अनदर. It include long term or short term. Example like a electricity bill. And a debt is a specific type of liability that include borrow money such as a loan. So there is a difference.
सो नाउ एसेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड। तो इसका मतलब है कि एसेट जो फर्म की हैं सबसे पहले वो यूज की जाएगी जो उसके डेब्ट्स हैं, जो उसकी लायबिलिटी है एक स्पेसिफिक, जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, हम इनको थर्ड पार्टी भी कहते हैं। तो इन सभी को फर्म सबसे पहले अपनी एसेट्स को रिलीज करेगी और उसका पैसा जो है, डेब्ट्स जो है वो उसको पूरा करेगी ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। नेक्स्ट इन पेइंग, अब यहाँ पर फर्म जो है, जब फर्म में पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो पार्टनरशिप खत्म होने के टाइम पर फर्म जो है वो अपनी लायबिलिटीज, अपनी डेब्ट्स को पूरा कर रही है, उसको पे कर रही है। तो इसके लिए फर्म ने अपनी एसेट्स को रिलीज करना शुरू किया है। तो वहां पर फर्म कह रही है कि सबसे पहले जो मेरे डेब्ट्स हैं, जो मेरे स्पेसिफिक डेब्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बैंक लोन है या क्रेडिटर्स है या इन्वेस्टर्स है, वो पैसा वापस मांग रहे हैं, जो इन फ्यूचर हमारे ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं लेकिन अगर हमने उनके पैसे वापस नहीं किए, तो सबसे पहले फर्म अपने उन डेब्ट्स को पैसा देगी of the firm to third party. Next in paying to each partner retainable what is due to him from the firm. अब यहाँ पर फर्म देखेगी कि जो फर्म की जो कैपिटल है, फर्म का जो पैसा है, वो फर्म पर कितना ड्यू है, या कोई आउटसाइडर है या इनसाइडर है या इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल यूजर है, उन पर हमारी कितनी ड्यू पेमेंट है, तो उनसे रिकवर करेगी फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंक्शन फ्रॉम कैपिटल। अब उसको वो पूरा करेगी उनके कैपिटल से। इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली, अब यहाँ पर फर्म, क्योंकि फर्म में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो रही है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो सभी पार्टनर जो भी चेंजेस होंगे या जो जा रहे हैं तो वहाँ पर वो अपने कैपिटल को भी सेटलमेंट कराएंगे। तो फर्म वहाँ पर उन सभी पार्टनर की कैपिटल को भी एडजस्ट करेगी, सेटल करेगी। व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कि उनकी कैपिटल का फर्म पर कितना ड्यू है या उन पर कैपिटल में जो पार्टनर्स थे उन पर कितना ड्यू है, तो आपस में वो अगेंस्ट में एक दूसरे पर जो ड्यू अमाउंट्स है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड द रेजिड्यू टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। और या फिर अगर पार्टनर्स, हमारा पार्टनर्स पर जो पैसे हैं वो ड्यू हैं तो हम उनको कैसे पे करेंगे, या हमें जो पार्टनर्स को पेमेंट करनी है उसमें से एज अ प्रॉफिट हमने उसको अभी तक कितना पे कर दिया है और हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी पे करनी है। तो इस तरह से जो फर्म है, आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट द फर्म विल बी यूज पेमेंट ऑफ लॉसेज इन एज अ प्रॉफिट, कैपिटल or individually by the partner. After that the firm can be used all the assets against to the settlement of accounts in the dissolution of partnership firm. So now the question is distinction between dissolution of partnership and dissolution of firm. First is change in economic relation. The economic relation of partnership अमंग डिफरेंट पार्टनर्स आर चेंज। इसका मतलब है कि डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब एक जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो गई है और जो नई पार्टनरशिप है वो स्टार्ट हो रही है, नई बना सकते हैं, नया एग्रीमेंट बना रहे हैं। डिससॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जहाँ पर सारे इकोनॉमिक इवेंट, सारे इकोनॉमिक रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं और फर्म में उसका एंड हो चुका है, फर्म जो है वो एंडिंग पे है। डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स, जो सर मैं बार बार बता रही हूँ कि डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जब फर्म में जो पार्टनर थे उन सभी ने मिलकर के कुछ अपने एडजस्टमेंट के साथ टाइप्स जो हमने अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 48, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 40, तो जो हमने यहाँ पर सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 43 में जो हमने एडजस्टमेंट जो प्रोविज़न पढ़ रहे हैं, तो इन सभी प्रोविज़न को यूज़ करके कोई भी फर्म जो पार्टनरशिप में चल रही है उसको वो एंड कर सकती है। द इकोनॉमिक, जब वहाँ पर डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने साझेदारी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं और एक नई पार्टनरशिप को अप्लाइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब उनके सभी इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएंगे कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। डिससॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जहाँ पर इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि जो फर्म है वही बंद होने जा रही है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस।
द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट टर्मिनेटेड। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वही एंड हो रही है, बिजनेस जो है वो एंड नहीं हो रहा है। तो बिजनेस जो है फर्म का वो एज यूजुअल वैसे ही चलता रहेगा जैसे वो चल रहा था। सपोज एक जूते का काम हो रहा था, जूते का व्यापार हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो सेम वही चलता रहेगा, बस वहाँ पर कुछ नई एडजस्टमेंट जो है वो अप्लाइड होंगी। द बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज। यहाँ पर हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जब फर्म बंद हो रही है तो उसके सारी जो बिजनेस है वो भी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Assets and liabilities are revalued and new balance sheet is drawn at the time of admission of a new partner. It will be used. जब फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के आने पर वो क्वेश्चन करता है फर्म से, या जानना चाहता है कि फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं एट प्रेजेंट वैल्यू की और कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं जो रीअसेस करनी है या जिनको हमें पे करना है, या कितनी लायबिलिटीज़ है जो हम पे कर चुके हैं। तो इन सभी के एडजस्टमेंट के साथ फर्म में, इन सभी की कंडीशंस के साथ फर्म में वो एडमिट होता है। तो वहाँ पर जब अगर रिवैल्यूएट, अगर वहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो भी इन फ्यूचर जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर लॉस है तो वो भी फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको बियर करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन का जो चैप्टर है वो है, हमने एडमिशन पे पढ़ा कि वहाँ पर जो फर्म में एक नया एग्रीमेंट बनता है, नया एडमिशन होता है किसी पार्टनर का, तो वहाँ पर हमेशा रीवैल्यूड होती है हमारी एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, और हमें एक उन सभी चेंजेस के साथ एक नई बैलेंस शीट जो है वो शो करनी पड़ती है। एसेट्स आर सोल्ड एंड रिलीज एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कंसेप्ट काम कर रहा है, हमारी फर्म बंद हो रही है, तो वहाँ पर फर्म के बंद करने से पहले फर्म को अपनी सारी एसेट्स को बेचना पड़ेगा और साथ साथ सारी लायबिलिटीज़ को वो पे करती चली जाएगी। Next is closure of books of account. It does not require the closure of books because the business is not terminated. Terminated mean end. इसका मतलब है कि जब हमारी पार्टनरशिप एंड हो रही है, फर्म में जो बिजनेस है वो एंड नहीं हो रहा है, तो हमारी जो बुक्स हैं वो भी एंड नहीं होगी, मतलब हम उनको क्लोज नहीं करेंगे और एज यूजुअल कंटिन्यू हम वही प्रोसेस यूज़ करते रहेंगे जो हमने अभी तक किया, अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता रहेगा फर्म। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज। यहाँ पर फर्म ही बंद हो रही है, तो इसी के साथ साथ सारी जो अकाउंट्स हैं वो भी सेटल्ड हो जाएंगी और उनको बंद कर दिया जाएगा आफ्टर दैट द कोर्ट ऑफ नोटिस, कि जब कोर्ट का नोटिस आ जाएगा तो फर्म को वाइंड अप करने के लिए, तो फर्म को अपना वाइंड अप करने से पहले अपनी एसेट्स को बेचना पड़ेगा अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। आफ्टर दैट द फर्म विल बी क्लोज ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन। इट डज नॉट इम्प्लाई डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यहाँ पर ऐसा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, बुक्स हमारी कंटिन्यू है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर कोई भी फर्म पर नहीं पड़ेगा। इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द फर्म। यहाँ पर इसका बहुत असर पड़ेगा क्योंकि फर्म जो है वो बंद हो रही है। जब फर्म बंद हो रही है तो आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र थे उनके साथ आपके रिलेशन क्या थे, वो सारे रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे। आप जो आपकी एक गुडविल थी मार्केट में वो सब खत्म हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का साथ साथ अब अगर आप इन फ्यूचर को नया बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके एक रीज़न आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और शायद ही वो आपके फेवर में काम करेंगे, अगेंस्ट में वो चीज़ें ज़्यादा काम करेंगी। इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, वहाँ पर रीज़न ढूंढेगी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपने अपनी फर्म को बंद किया, उसके क्या रीज़न थे फर्म को बंद करने के, किन वजह से फर्म को बंद किया गया। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं आपके ऊपर, आपकी फर्म पर एक लॉन्ग टर्म तक जो है वो इम्प्लीकेट होंगी और एक जो मार्केट से आपकी जो रेपुटेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट सेक्शन 49। Firm's debt are the debts incurred by the firm, whereas private debts are incurred by partners. Settlement of firm debts अब यहाँ पर उसने कहा है कि फर्म में अगर फर्म की डेब्ट्स, मतलब फर्म ने अगर सपोज कोई मशीन परचेज़ की थी, उस मशीन को ख़रीदने के टाइम पर वहाँ पर क्रेडिटेशन यूज़ की है और उसका जो पैसा है वो हमारे पर अभी एज ए लायबिलिटी ड्यू है और हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फर्म्स डेब्ट। जो भी देनदारी है वो फर्म की है। तो इसका मतलब जब फर्म की देनदारी है तो फर्म सबसे पहले, जैसे हमने पढ़ा था कि फर्म अपने जो डेब्ट्स हैं उनको वो पूरा करेगी अपने प्रॉफिट से,
फर्म जो फर्म की कैपिटल है उससे, जो रिजर्व्स हैं उनसे करती है। लेकिन तो इसका मतलब है जो फर्म की डेब्ट्स है, फर्म जो अपनी देनदारी पूरी कर रही है। एंड प्राइवेट डेब्ट्स का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर पर्सनली किसी चीज़ को उसने यूज़ किया है, पैसा लिया है पर्सनली किसी से एज अ लोन, और वहाँ पर कोई एसेट्स परचेज की है पर्सनली, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट डेब्ट्स। अब उनको सेटल करने के लिए फर्म को क्या प्रोविज़न यूज़ करने पड़ेंगे, सो यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। फर्म्स डेब्ट आर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फर्म की डेब्ट्स हैं वो फर्म की अपनी डेब्ट्स हैं और फर्म उनको अपने पैसे से पूरा करेगी और पे करेगी। वेयर एज प्राइवेट डेब्ट्स आर इनकर्ड बाय पार्टनर्स, और जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं जो पर्सनली हमने पेमेंट करनी है वो हमारी पार्टनर्स की पर्सनली है। अंडर दियर इंडिविजुअल कैपेसिटी, अब यहाँ पर उनकी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी है कि जो फर्म डेब्ट्स हैं वो अपनी डेब्ट्स को कैसे पे करेगी, जो पार्टनर्स हैं वो अपनी डेब्ट्स को कैसे पे करेगा। फर्म एसेट्स, तो यहाँ पर जो है फर्म की एसेट्स, क्योंकि फर्म की डेब्ट्स हैं तो फर्म की एसेट्स यूज होंगी। पार्टनर्स की डेब्ट्स हैं तो पार्टनर्स की जो डेब्ट्स हैं उसके लिए पार्टनर्स की एसेट्स यूज होंगी या उसकी प्राइवेट एसेट्स यूज होंगी। फर्म्स एसेट्स आर फर्स्ट यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड द सरप्लस इफ एनी is applied towards payment of partners private debts to the extent of his share in profit of the firm। इसका मतलब है कि अगर फर्म अपनी डेब्ट्स को पे कर रही है और उसको पे करने के टाइम पर जो भी फर्म में, अगर सपोज एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की अमाउंट जो है प्रेजेंट में 5 लाख रुपए की है और फर्म के ऊपर जो डेब्ट्स है वो 3 लाख रुपए की है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म अपनी लैंड को बेच देगी। अब वहाँ पर बेचने के बाद 3 लाख रुपए की उसकी जो लायबिलिटीज थी, जो डेब्ट्स थी वो कंप्लीट होगी, वो चली गई। अब यहाँ पर 2 लाख रुपए का उसको क्या हुआ, सरप्लस हुआ, 2 लाख रुपए उसके पास ज़्यादा बचे, तो वो 2 लाख रुपए क्या होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इफ एनी इज अप्लाइड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट, अब फर्म क्या करेगी कि जो पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स हैं उनको वो उस पैसे से पूरा कर सकती है। तो इसका मतलब है कि फर्म की भी अपनी डेब्ट्स होती हैं और फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं वो भी पर्सनली बहुत सारी डेब्ट्स को यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम। तो जिनको पे करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 49 में कुछ रूल्स बनाए हैं, प्रोविज़न बनाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फर्म अपनी जो डेब्ट्स हैं उनको वो सबसे पहले पूरा करेगी अपनी एसेट्स से, और अगर उस एसेट्स पे जो भी सरप्लस होगा या डिफिशिएंसी होगी तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या तो सरप्लस को बांट दिया जाएगा, उनके प्राइवेट जो डेब्ट्स हैं उनको पे कर दिया जाएगा, और अगर लॉसेस होंगे तो उनसे और पैसा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग वापस लिया जाएगा। प्राइवेट डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स एंड द सरप्लस इफ एनी आफ्टर दैट इज यूज टू पे ऑफ फर्म्स डेब्ट। अब यहाँ पर प्राइवेट डेब्ट्स की बात हो रही है ऑफ द पार्टनर की, आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जब प्राइवेट, अब क्योंकि फर्म ने तो अपनी डेब्ट्स के लिए अपनी एसेट्स को बेच दिया, रिलीज कर दिया है, लेकिन अब जो पार्टनर्स की पर्सनली जो डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए जो पार्टनर है वो अपनी प्राइवेट एसेट्स को रिलीज करेगा। इसका मतलब कि जो फर्म की एसेट्स थी वो फर्म की एसेट्स फर्म के डेब्ट्स को पे करने में चली गई, सरप्लस हुआ तो पार्टनर्स की प्राइवेट जो डेब्ट्स हैं हम उनको पे कर देंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो एज यूजुअल स्टैंड रहेगी, मतलब खड़ी रहेगी और उसको पे करना पड़ेगा जब तक वो अरेंज नहीं करता है। अब यहाँ पर प्राइवेट डेब्ट्स, अगर पार्टनर्स की जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा और अपनी जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं उनको पूरा करेगा। ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स एंड द सरप्लस इफ एनी देयर आफ्टर इज यूज टू पे ऑफ द फर्म्स डेब्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर प्राइवेट जो उसकी एसेट्स थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी पार्टनर की, अगर वो अपनी प्राइवेट डेब्ट्स को पे करने में यूज़ किया जब उसने, और वहाँ पर अगर कोई सरप्लस होता है और पैसा बचता है और वहाँ पर वो देख रहे हैं कि सामने फर्म की कुछ डेब्ट्स भी हैं जो अभी पे नहीं हुई हैं, तो वो सरप्लस का पैसा उस फर्म की डेब्ट्स को पे करने में यूज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपोजिट हो रहा है कि जब फर्म अपनी एसेट्स को पे कर रही है, अपनी डेब्ट्स को पे कर रही है अपनी एसेट्स से, तो जब वहाँ पर सरप्लस होगा तो उस सरप्लस से फर्म जो है
अपने पार्टनर की पर्सनली जो डेब्ट्स हैं उनको पे कर देगी। अब यहाँ पर जब फर्म में जो पार्टनर हैं उनकी जो पर्सनली जो डेब्ट्स है उसको पे करने के लिए वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, और अगर उस पर जो सरप्लस पैसा बढ़ के आ रहा है, पैसा बचता है, तो वो अपनी फर्म की जो डेब्ट्स है, बची हुई रिमेनिंग जो डेब्ट्स है, उनको वो पे करेगा। सो टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, पेमेंट ऑफ लॉसेज, distribution of assets, difference between the dissolution of partnership and dissolution of firm, settlement of firm debts and private debts also according to the section 49. So students, you have to be very carefully, and this chapter is very important for 6 mark question. And in again I have said that you should be remember that all the examination you earlier soon, so you have to be prepared for your exams unit first. So take care and goodbye.